रहता है। Good morning to all of you. Okay. So in last class we discussed about the hardware and software parallelism. So
we discussed hardware parallelism, software parallelism, and what is the mismatch between the hardware and software parallelism. Okay. Now today we discuss about the how we can match hardware and software using dual processor. Okay. So match between hardware and software parallelism using dual processor system. So suppose we are taking two processor 1 and processor 2. Suppose this is your processor 1 and this is your processor 2. Okay. Now we are performing load and store operation and multiplicity operation and addition and subtraction operation on these instructions. Okay. So in previous discussion, we are using one example. I think you all have remember A is equal to L1 multiplication L2 plus L3 multiplication L4 and B is equal to L1 multiplication L2 and L3. क्या था आपका A is equal to L1 multiplication L2 plus L3 multiplication L4 and B is equal to L1 multiplication L2 minus L3 multiplication L4. Okay, so be performing this load and store multiplicity and add and subtraction operation on these statements. Okay, so we are calculating how much cycles we are required to execute this instruction or these statements. Okay, so first we have to load the instruction. So we are uploading instruction L1 parallelly for processor P2. Upload L3, then L2 and L4. Okay. Then we are applying multiplicity operation. That means multiplication. We can represent multiplication 1 and this multiplication hold the result of L1 and L2. Similarly, here we are taking x 2 and this holds the result of L3 and L4. Okay, now this is your cycle 1 where we are loading instruction 1. This is cycle 2 we are loading instruction 2 and this is cycle 3 where we are applying multiplicity operation. Okay, now next is cycle 4. Okay, so in cycle 4 we are using a store operation. Okay, S1. This store operations hold the value or the result of this multiplicity operation which we are performing on instruction 1 and instruction 2 means L1 and L2. Okay. Similarly, here we are using store operation S2. Now next is cycle 5. In cycle 5 we are loading the instruction L1, L2, L3, L4 is completed. Now next is L5 and L6. L5 and L6. Now we are adding two extra two. Hello, am I audible? Okay. So we are using four added instruction. Okay, to store and to load. Okay, so after that I will tell you why we are using this added instruction. Okay, so here we performing addition operation.
ठीक है, तो देखिए फर्स्ट जो हम लोगों ने देखा था, थिंक आप लोगों को रिमेम्बर है या नहीं, आई डोंट नो, एक बार आपको रिमाइंड करवा देती हूँ। हम लोगों ने ये देखा था, ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने सॉफ्टवेयर पैरेललिज्म देखा था, देन हार्डवेयर पैरेललिज्म देखा था। सॉफ्टवेयर पैरेललिज्म विल टेक 3 साइकिल्स, हार्डवेयर पैरेललिज्म टेक 7 साइकिल्स, ठीक है। देन वी विल डिस्कस मिसमैच बिटवीन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पैरेललिज्म, ठीक है। एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग मैच बिटवीन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पैरेललिज्म यूजिंग डुअल प्रोसेसर, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने हार्डवेयर देखा था, सॉफ्टवेयर देखा था, 7 स्टेप्स लग रही थी, 6 स्टेप्स लग रही थी हमारी, ठीक है। मिसमैच हम लोगों ने देखा था कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर हमारे कैसे कैसे परफॉर्म हो रहे थे। बट अगर हम डुअल प्रोसेसर का यूज करते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के लिए, तो उसमें हमारी नंबर ऑफ स्टेप्स हमें क्या होंगी, रिड्यूस होंगी, बिकॉज हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो हमारा हार्डवेयर है हम उसको वहां पर इंक्रीज कर रहे हैं। सो अगर हम 2 मशीन्स को पैरेलली यूज कर रहे हैं और उनमें लोड एंड स्टोर ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं, देन मल्टीप्लिसिटी एंड एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं, तो इट विल रिड्यूस द साइकिल नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ दिस एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो हम लोगों ने सबसे क्या किया, सबसे पहले क्या किया, 2 प्रोसेसर्स का यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर। अब देखिए हम जो इंस्ट्रक्शंस यूज कर रहे हैं, एक हम लोगों ने देखा लोड एंड स्टोर ऑपरेशन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, मल्टीप्लिसिटी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, राइट। तो फर्स्ट साइकिल में हम क्या करेंगे, लोड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ये जो मैंने एक पार्टीशन किया है बीच में, इट शोज द dual processor. This is your processor 1, you can assume that, and this is your processor 2, ठीक है। So these 2 processor can parallelly execute, and it shows the parallelism between the hardware and software, ठीक है। And why we are using 2 dual processor, because we are reducing the number of cycles, ठीक है। So 2 processors हम use कर रहे हैं, processor 1 and processor 2 for machine. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लोड करवाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास 4 इंस्ट्रक्शन है, L1, L2, L3 एंड N4 फॉर स्टेटमेंट 1, एंड सिमिलरली 4 स्टेटमेंट्स हमारे जो लोड इंस्ट्रक्शन है वो सेकंड स्टेटमेंट के लिए है, बी के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करवाएंगे, इंस्ट्रक्शंस जो हमारे हैं उन्हें हम लोड करवाएंगे। तो L1, L2 को हमने एक मशीन पर लोड करवाया, एक प्रोसेसर पर, L3 एंड L4 को हम लोगों ने एक प्रोसेसर पर लोड करवाया, ठीक है। सो L1, L3 हमारा साइकिल 1 में आएगा, बिकॉज ये सेम टाइम पर डिफरेंट प्रोसेसर पर, 2 प्रोसेसर पर लोड हो रहे हैं, ठीक है। साइकिल 2 में L2, L4 आया, सेम टाइम पर ये हमारा लोड हो रहा है डिफरेंट मशीन पर, प्रोसेसर पर, ठीक है। तो ये आपका साइकिल 1 एंड साइकिल 2, यहाँ पर आपने क्या किया, लोड किया है इंस्ट्रक्शंस को, राइट। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिसिटी ऑपरेशन परफॉर्म, मल्टीप्लाई या मल्टीप्लिसिटी ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। किस किस के बीच में था, L1 मल्टीप्लाई L2 प्लस L3 मल्टीप्लाई L4। तो हम सबसे पहले मल्टीप्लाई ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे L1 एंड L2 का, ठीक है, L3 एंड L4 का सिमिलरली। तो मल्टीप्लीकेशन करवाया, देन अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम 4 एडेड इंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हैं, एक स्टोर एंड लोड, ठीक है। तो जो भी हमारा मल्टीप्लीकेशन का जो रिजल्ट होगा हम उसको क्या करवाएंगे, स्टोर करवाएंगे। स्टोर कराने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं, स्टोर ऑपरेशन S1 एंड S2। यहाँ पर जो ये जो मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट है वो S1 में आएगा, एंड यहाँ पर L3, L4 का जो मल्टीप्लीकेशन है वो हमारा S2 में स्टोर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ये हाफ ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाया, राइट। अब हमारे पास स्टोर ऑपरेशन में इनका मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट है, इनका मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट है। अब हमें क्या करवाना है, अगेन जो हमारा हाफ पार्ट है, लाइक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वाला, वो परफॉर्म करवाना है। बट वो परफॉर्म भी हमें किस पे करवाना है, L1, L2 एंड L3, L4 पर। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 मोर एडेड इंस्ट्रक्शन लेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर लोड करवाएंगे जो हम लोगों ने एडेड इंस्ट्रक्शन लिए हैं, L5 एंड L6, ठीक है। L5 एंड L6 क्यों ले रहे हैं, हम यहाँ पर जो हमारी S1, S2 की जो वैल्यूज है हम उनको यहाँ पर हम शेयर कर रहे हैं, ठीक है। देखिए S1 की वैल्यू L6 में हम स्टोर करवा रहे हैं, S2 की वैल्यू हम L5 में स्टोर करवा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्यों स्टोर करवा रहे हैं, बिकॉज L1, S1 में क्या है आपका, L1 मल्टीप्लाई L2, ठीक है। तो ये आपका आ गया L1 मल्टीप्लाई L2 प्लस L3 मल्टीप्लाई L4। तो L3 मल्टीप्लाई L4 कहाँ से आएगा, हमारा S2 से। S2 की वैल्यू हमारी L5 में आएगी, देन यहाँ पर एडिशन होगा इनका, देन उसका जो रिजल्ट है वो किसमें स्टोर होगा, हमारा A में। सिमिलरली हम यहाँ पर क्या करवा रहे हैं, S1 में क्या है, L1
मल्टीप्लाई L2 की वैल्यू है उसको हम स्टोर करवाएंगे L6 में, लोड करवाएंगे। देन स्टोर S2 में हमारी किसकी वैल्यू है, L3 मल्टीप्लाई L4 की, तो वो वैल्यू हम यहाँ पर लोड कर स्टोर से लोड करवाएंगे एंड मल्टी डिवीजन सॉरी सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे एंड उनका जो रिजल्ट है वो किस में आएगा, हमारा बी में। तो यहाँ पर जो स्टोर करवा रहे हैं हम एंड जो ऐड करवा रहे हैं, जो 4 हम एडेड इंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हैं वो हमारी साइकिल 4 एंड साइकिल 5 होगी एंड जो रिजल्ट स्टोर हो रहा है दैट इज इन साइकिल 5। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर रिजल्ट जो सब्ट्रैक्शन और एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो हमारा किस में होगा, साइकिल 5 में, जब आपका रिजल्ट ए एंड बी एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम एडेड इंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हैं तो वो किसके लिए करवा रहे हैं, हम इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, इन शेयर्ड मेमोरी। तो जो भी हमारे लोड एंड स्टोर हम लोगों ने जो इंस्ट्रक्शन यूज किए हैं, एडेड इंस्ट्रक्शन हमने क्यों यूज किए हैं, ताकि हम उनमें इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन करवा सके। शेयर्ड मेमोरी, जो भी हमारे इंस्ट्रक्शन लोड हो रहे हैं या जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं वो एक शेयर्ड मेमोरी के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं, शेयर्ड मेमोरी में स्टोर हो रहे हैं एंड वहां से हम क्या कर रहे हैं, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के थ्रू जो भी हमारे इंस्ट्रक्शन है उनको हम एक्सचेंज कर रहे हैं, इंटर प्रोसेस करवा रहे हैं एंड हम उनको एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स आपकी कितनी यूज हो रही हैं। यस आयुष। मैम अगर इसमें से हम L5 और L6 को हटा दें तो कोई दिक्कत है क्या? L5 एंड L6 को अगर आप हटा देंगे, ठीक है, सपोज ये आपका L5 एंड L6 है, जस्ट ठीक है, L5 एंड L6 अगर आप हटा देंगे तो आपके पास क्या बचेगा, S1, ओनली S1 बचेगा। ठीक है, S1 S2 हम स्टोर करवा रहे हैं रिजल्ट को। ओके, तो S1 की में किसकी वैल्यू है, आपकी L1 एंड L2 का जो मल्टीप्लीकेशन उसकी वैल्यू है, राइट। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, इसको प्रोजेक्ट करा देंगे या फिर यहाँ से लोड करवाएंगे, किसमें, यहाँ पर आपकी वैल्यू आ गई। बट आप L3 L4 की वैल्यू कहाँ से लेकर आएंगे, S2 से। S2 से। ठीक है, ये आपकी S2 से डायरेक्टली आ जाएगी, यहाँ पर आप ये बोल रहे हैं। बट जब भी हम लोड एंड ये स्टोर ऑपरेशन हम जब परफॉर्म करवाते हैं तो हमने क्या करवा दिया, लोड करवाया इंस्ट्रक्शन को, उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करवाया, देन हम उस पर स्टोर का यूज कर रहे हैं एंड यहाँ पर जो हम L5 L6 जो हम ले रहे हैं, ठीक है, तो हम जब शेयर्ड मेमोरी का कॉन्सेप्ट हम जब यूज करते हैं, जब इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन हम करवाते हैं तो वहां पर हमारे लोड एंड स्टोर ऑपरेशन मस्ट होते हैं। ठीक है, तो हमें लोड एंड स्टोर ऑपरेशन का यूज करके इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन करवाना रहता है इंस्ट्रक्शंस के लिए, इसलिए हम यहाँ पे लोड एंड स्टोर ऑपरेशन को यूज करवा रहे हैं, बिकॉज जो हमारा कम्युनिकेशन है इंस्ट्रक्शंस का वो इजी हो जाए और डायरेक्टली वो कम्युनिकेट करके जो भी इंस्ट्रक्शन है उनको शेयर कर लें एंड उनमें जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर पाए। जो इंटर प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, हमारा शेयर्ड मेमोरी के थ्रू हो रहा है। शेयर्ड मेमोरी हमारी बेसिकली देखिए, तो जो दोनों प्रोसेसर्स हैं उनके लिए हम एक कॉमन शेयर्ड मेमोरी का यूज करेंगे जिसमें हमारे इंस्ट्रक्शंस स्टोर होंगे, राइट। तो वहां से जिस भी इंस्ट्रक्शन की हमें रिक्वायरमेंट्स होगी तो हम क्या करेंगे, शेयर्ड मेमोरी से लेकर उसे लोड करवाएंगे। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया था, ठीक है, तो सपोज इन दोनों प्रोसेसर्स के लिए हमारे पास ये कॉमन मेमोरी है। ठीक है, शेयर्ड मेमोरी आप इसे बोल सकते हैं, कॉमन मेमोरी बोल सकते हैं। अब इसमें जो भी हमारे इंस्ट्रक्शन लोड हो रहे हैं या स्टोर हो रहे हैं वो वहां या हमारे शेयर्ड मेमोरी के अंदर भी आते जाएंगे, उनकी पर्टिकुलर एक लोकेशन होगी जहां पर वो स्टोर होते जाएंगे। सपोज L1 L2 L3 L4 जब मल्टीप्लीकेशन करवा रहे हैं, देन हमने जो भी मल्टीप्लीकेशन करवाया है x1 x2 उनकी वैल्यू भी स्टोर होगी हम। ठीक है, देन L5 हमने एक्स्ट्रा एक्स लिए हैं वो भी होंगे, तो इन सब की वैल्यू, तो जो भी हमें वैल्यूज यहाँ पर चाहिए होगी, सपोज L1 L2 की वैल्यू चाहिए तो हम लोगों ने शेयर्ड मेमोरी का यूज किया एंड यहाँ पर किया। तो ये जो हमने लोड ऑपरेशन परफॉर्म करवाए, देन हमने स्टोर करवाया है उनको, अगेन हमें क्या करवाया, लोड करवाया। तो लोड करवाने के लिए हमें वैल्यू को शेयर्ड मेमोरी से ही लेना होगा। तो शेयर्ड मेमोरी के अंदर जो भी हमारे लोड ऑपरेशन है हम वहां से ही उनको ऑपरेशन को फैच करेंगे एंड यहाँ पर उन्हें स्टोर करवाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर टू एडेड जो हमारे इंस्ट्रक्शन है लोड एंड स्टोर उनको हम यूज कर रहे हैं।
सो हम इनके थ्रू यूज करके ड्यूअल प्रोसेसर हमने नंबर ऑफ साइकिल्स तो हमने रिड्यूस की फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग हम लोगों ने क्या किया था, एवरेज पैरेललिज्म कैलकुलेट किया था, सॉफ्टवेयर के लिए भी यूज किया था, हार्डवेयर के लिए भी यूज किया था। आप लोग को याद है या नहीं, आई डोंट नो। जब हम लोगों ने ये सॉफ्टवेयर के लिए जब हम लोगों ने यूज किया था, तो यहाँ पर हमने देखा था टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस हमारे कितने थे, 8 थे, एंड टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स हमारी कितनी लग रही थी, 3 लग रही थी। तो हम लोगों ने यूज कर यहाँ से कैलकुलेट किया था कि टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर साइकिल हमें कितने लगेंगे, 2.67 इंस्ट्रक्शन पर साइकिल्स लग रहे थे, राइट। बट हार्डवेयर का जब हम यूज कर रहे थे, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस 8 थे एंड टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स कितनी हमें लग रही थी, 7। तो हमारा रिजल्ट क्या आ रहा था, 1.14 अप्रोक्सीमेट, राइट। सिमिलरली जब हम डुअल प्रोसेसर का यूज कर रहे हैं यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कितने हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन हमारे क्या यूज हो रहे हैं सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स हमारी कितनी यूज हो रही है, 6। टोटल नंबर ऑफ हमारे इंस्ट्रक्शंस जो है वो कितने यूज हो रहे हैं इसमें ठीक है, 4 हमारे इंस्ट्रक्शन ये थे, 1 2 3 4, ठीक है, जिनका हमने ऑपरेशन परफॉर्म करवाया था, ठीक है। फिर हमने 4 एडेड इंस्ट्रक्शन यूज किए हैं, तो 4 4 8 ये हो गए हमारे S1 S2 L5 L6, ठीक है। और ठीक है, और हमारा ये जो सारे ऑपरेशंस हैं हमारे 2 प्रोसेसर्स के लिए हम यूज कर रहे हैं, तो L1 L2 L3 L4, ठीक है। तो ये हमारे 2 प्रोसेसर में यूज होंगे बिकॉज L1 L2 मल्टीप्लाई L3 L4 था। सिमिलरली L1 L2 मल्टीप्लाई L3 L4 था। तो यहाँ पर हमारे 4 4 8 इंस्ट्रक्शन ये हो गए और 4 हमने एडेड इंस्ट्रक्शंस यूज किए, मींस टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन हमारे कितने हुए, 12 इंस्ट्रक्शंस यूज हो रहे हैं एंड टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स हमारी कितनी यूज हो रही है, 6। तो यहाँ पर हमारा जो एवरेज जो पैरेललिज्म होगा वो कितना होगा, 2 इंस्ट्रक्शन पर साइकिल हमारा यहाँ पर यूज होंगे। तो यहाँ पर जो हमारा सॉफ्टवेयर पैरेललिज्म था वो हमारा अप्रोक्सीमेट कितना आ रहा था, 2.67 एंड हार्डवेयर क्या आ रहा था हमारा 1.14। तो इसके नियर अबाउट हमारे इंस्ट्रक्शंस यूज होंगे जब हम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे। बट यहाँ पर हम डुअल प्रोसेसर का यूज कर रहे हैं, तो हमारी यहाँ पर जो कॉस्ट होगी वो क्या होगी, हमारी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो हार्डवेयर पैरेललिज्म कैसे निकाला था, ये सॉरी एवरेज हार्डवेयर पैरेललिज्म? एवरेज हम लोगों ने कैलकुलेट किया था टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन अपॉन टोटल नंबर ऑफ साइकिल, ये हमारा फॉर्मूला था, टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 12 इंस्ट्रक्शंस यूज हो रहे हैं बिकॉज 4 प्रोसेसर 1 के लिए, 4 प्रोसेसर 2 के लिए एंड 4 हमारे एडेड इंस्ट्रक्शन है। तो 12 इंस्ट्रक्शन एंड टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स हमारी 6 यहाँ पर यूज हो रही है, ठीक है। और ये जो है हमारे 2.67 ये हम पहले कैलकुलेट कर चुके थे, हमारे टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन उस टाइम पर 8 इंस्ट्रक्शन यूज हो रहे थे सॉफ्टवेयर में एंड साइकिल्स हमारी 3 थी, तो हमारा कैलकुलेट हुआ था 2.67। एंड जब हम लोगों ने हार्डवेयर कैलकुलेट किया था तो उसमें हमारे इंस्ट्रक्शन यूज हो रहे थे 8 एंड साइकिल्स थी हमारी 7, तो अप्रोक्सीमेट 1.14 हमारा आया था, ठीक है। सो अगर हमें पैरेललिज्म को अगर हमें अचीव करना है तो हमें ज्वाइंट एफर्ट करना होता है बिटवीन द हार्डवेयर डिजाइन एंड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर डिजाइन। सो इससे हमारी क्या होगी, जो भी हमारी सिस्टम की है, जो हमारी कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस है वो हमारी क्या होती है, अपग्रेड होती है, इंक्रीज होती है। बट हमें इसमें और भी
इसमें अपग्रेडेशन की रिक्वायरमेंट्स है, बिकॉज हम अगर यहाँ पर देखिए हम डुअल प्रोसेसर का यूज कर रहे हैं तो हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, और अगर हम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का मिसमैच कर रहे हैं तो हमारी वहाँ पर जो पैरालिज्म, एवरेज पैरालिज्म है वो हमारा डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है। तो हमें इसमें अपग्रेडेशन की रिक्वायरमेंट है, बट अगर हमें सिस्टम में हम यूज करते हैं और फाइंड करते हैं, डिटेक्ट करते हैं पैरालिज्म का, तो हमें हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों का ही यूज करके हम सिस्टम को डिजाइन करते हैं, बट इसमें अपग्रेडेशन का स्कोप है, हमें इसमें और फर्दर इंप्रूवमेंट्स करने होंगे फ्यूचर में, राइट। अब यहाँ पर जो हमारे सॉफ्टवेयर पैरालिज्म होता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर पैरालिज्म हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट होता है आपका कंट्रोल डिपेंडेंस, सॉरी कंट्रोल पैरालिज्म, एंड सेकेंड होता है आपका डेटा पैरालिज्म, ठीक है। सो व्हाट इज कंट्रोल पैरालिज्म? सो 2 और मोर ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड साइमल्टेनियसली, ठीक है। सो 2 और मोर देन 2 ऑपरेशन जब हम परफॉर्म कराते हैं साइमल्टेनियसली, तो वो हमारा कौन सा होता है? कंट्रोल पैरालिज्म होता है, ठीक है। और फॉर कंट्रोल पैरालिज्म वी आर यूजिंग अ स्पेशल लैंग्वेज और कंस्ट्रक्ट और डिवाइडिंग अ प्रोग्राम इनटू मल्टीपल प्रोसेस, ठीक है। तो जब भी हम कंट्रोल पैरालिज्म की जब हम बात करते हैं, तो सबसे पहले तो ये हमारा डिटेक्ट कैसे होगा कंट्रोल पैरालिज्म? तो इट विल बी दिस विल बी डिटेक्टेड बाय अ कंपाइलर और अ प्रोग्रामर, ठीक है। तो कंपाइलर इसे इम्प्लिसिटली डिटेक्ट करेगा और जो प्रोग्रामर है वो इसे एक्सप्लिसिटली डिटेक्ट करेगा, ठीक है। और ये क्या इंडिकेट करेंगे? कंट्रोल पैरालिज्म को किसके को हम डिटेक्ट कर सकते हैं किसके थ्रू? बाय यूजिंग स्पेशल लैंग्वेज जो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, या हम जो प्रोग्राम डिवाइड करते हैं उसमें जो मल्टीपल प्रोसेसेस जो है उनको डिवाइड करते हैं उनके थ्रू, राइट। बेसिकली जो हमारा कंट्रोल पैरालिज्म होता है, ठीक है, वो हमारी किसके फॉर्म में अपीयर होता है? पाइपलाइनिंग के, ठीक है। पाइपलाइनिंग ऑफ मल्टीपल फंक्शंस हो सकते हैं, आपके मल्टीपल फंक्शनल यूनिट्स हो सकती हैं, ठीक है। तो उनके थ्रू हम इसे क्या करते हैं? जो अपीयर होता है ये पाइपलाइनिंग में, सॉरी कंट्रोल पैरालिज्म हमारा अपीयर होता है किसके फॉर्म में? पाइपलाइनिंग के फॉर्म में अपीयर होता है मल्टीपल फंक्शनल यूनिट्स में। एंड जो हमारा ये कंट्रोल पैरालिज्म होता है, ठीक है, ये किसके थ्रू हैंडल होता है? हमारा हार्डवेयर पैरालिज्म के थ्रू हम इसे क्या करते हैं? हैंडल करते हैं, नेक्स्ट होता है आपका डेटा पैरालिज्म। डेटा पैरालिज्म भी क्या होता है? ये आपका ऑलमोस्ट सिमिलर होता है आपके कंट्रोल पैरालिज्म के थ्रू, सेम ऑपरेशन हम इसमें परफॉर्म कराते हैं, लाइक यहाँ पर हम बोल रहे हैं 2 और मोर ऑपरेशन हमारे साइमल्टेनियसली परफॉर्म होते हैं। एंड डेटा ऑपरेशन पैरालिज्म में क्या होता है? ऑल many data elements and many processors are parallelly perform simultaneously, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे बहुत सारे ऑपरेशन साइमल्टेनियसली परफॉर्म होते हैं, यहाँ पर 2 और 2 से मोर देन 2 ऑपरेशन हमारे परफॉर्म होते हैं, तो ऑलमोस्ट दोनों के ऑपरेशन हमारे सेम टाइप के होते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर भी जो हमारा ये जो डेटा पैरालिज्म है, ठीक है, तो इसमें जो भी हमारा सिंक्रोनाइजेशन होता है वो हमारा किसमें होता है? SIMD मशीन्स में होता है, और इसको हम हैंडल करते हैं थ्रू हार्डवेयर पैरालिज्म, सो ये 2 टाइप्स के हमारे सॉफ्टवेयर पैरालिज्म होते हैं। एंड जो डेटा पैरालिज्म में हम जो कोडिंग करते हैं, जो प्रोग्रामर जो कोडिंग करता है वो हमारी इजी होती है, एंड उसे हम इजीली डिबग भी कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है आपका, ठीक है, ये आपका हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पैरालिज्म था। नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज प्रोग्राम पार्टीशनिंग एंड शेड्यूलिंग, ठीक है। प्रोग्राम पार्टीशनिंग एंड शेड्यूलिंग ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है, जिसके अंदर हम क्या देखेंगे? ग्रेन साइज एंड लेटेंसी, लेवल ऑफ पैरालिज्म, ओके। सो सबसे पहले हमारा टॉपिक है प्रोग्राम पार्टीशनिंग एंड शेड्यूलिंग, एंड हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे लेवल ऑफ पैरालिज्म। सो वी हैव 5 टाइप ऑफ पैरालिज्म, ठीक है। सो दे आर इन अ डिफरेंट लेवल,
तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो भी हमारा प्रोग्राम होता है, जो हमारे डिफरेंट लेवल ऑफ पैरालिज्म है, उसमें अगर हमें किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना है तो हम कैसे करवाते हैं। तो सपोज ये हमारा क्या है, एक प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम हमारा किस में है, सीक्वेंशियल में है। ठीक है, अब अगर हमें इस सीक्वेंशियल प्रोग्राम को हमें एग्जीक्यूट करवाना है तो ये वन बाय वन जो भी हमारे इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस है वो हमारे एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, सपोज इट विल टेक 100 और ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट होगा जिसमें नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन आई डोंट सपोज इसके अंदर 1000 इंस्ट्रक्शन है एंड ये इंस्ट्रक्शन हमारे सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट होंगे, राइट। अगर हमें इन इंस्ट्रक्शंस को सीक्वेंशियल की जगह अगर हमें पैरेलली एग्जीक्यूट करवाना हो तो हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे या पार्टीशन कर देंगे डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में। ठीक है, सपोज दिस इज योर सेगमेंट 1, दिस इज योर सेगमेंट 2, दिस इज योर सेगमेंट 3। ठीक है, एंड इसके अंदर जो भी हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं हम उनको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पर 110 इंस्ट्रक्शन रखूँ, यहाँ पर मैं 100 इंस्ट्रक्शन रखूँ, यहाँ पर 1000 इंस्ट्रक्शन रखूँ, या 1500 इंस्ट्रक्शन रखूँ, यहाँ पर सपोज मैं 400 इंस्ट्रक्शन रखूँ। ठीक है, तो ये सपोज मैंने ये 1000 इंस्ट्रक्शन को यहाँ पर मैं डिवाइड कर रही हूँ, ये 500 इंस्ट्रक्शन, ये 400 और ये 100 इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो हमने क्या किया, सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन, सीक्वेंशियल प्रोग्राम, हमारा जो प्रोग्राम था वो एक सीक्वेंशियल प्रोग्राम था जिसके अंदर हमारे पास 1000 नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन थे जो हमारे एग्जीक्यूट हो रहे थे वन बाय वन। तो इट विल टेक अ टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर इन इंस्ट्रक्शन को सीक्वेंशियली मींस वन बाय वन एग्जीक्यूट होंगे तो ये टाइम भी ज्यादा लेंगे। अगर हम इन सीक्वेंशियल प्रोग्राम को, इंस्ट्रक्शन को अगर हम पार्टीशन करके एग्जीक्यूट करवाते हैं, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, हमारे थोड़ा सा कम टाइम लेंगे इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने की। जो इंस्ट्रक्शन पैरेलली एग्जीक्यूट हो सकते हैं हम उनको पैरेलली एग्जीक्यूट करवा देंगे यहाँ पर। तो ये जब इंस्ट्रक्शन पैरेलली एग्जीक्यूट होंगे तो ये इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होंगे तो ये हमारा क्या करेंगे, टाइम जो है वो रिड्यूस कर देंगे, लेस नंबर ऑफ टाइम में हमारा ये प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम को हम जो पार्टीशन कर रहे हैं, जिसे हम सेगमेंट बोल रहे हैं, प्रोग्राम सेगमेंट, हम इसे बेसिकली बोलते हैं ग्रेन। ठीक है, ग्रेन 1, ग्रेन 2, ग्रेन 3। प्रोग्राम सेगमेंट्स को या प्रोग्राम पार्टीशन जो हम कर रहे हैं हम उसे क्या बोलेंगे, ग्रेन, GRAIN, ये टर्म बोलेंगे ग्रेन। ठीक है, सो बेसिकली दिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सीक्वेंशियल प्रोग्राम टू अ पैरेलल एग्जीक्यूशन फॉर्म कैन बी डन बाय प्रोग्रामर और कंपाइलर। ठीक है, सो जो भी हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है सीक्वेंशियल से पैरेलल में वो किसके थ्रू होता है, या तो हमारा कंपाइलर करता है, ठीक है, इम्प्लिसिटली, या फिर हमारा प्रोग्रामर करता है एक्सप्लिसिटली। So with the help of this program partition can be determined whether the given program can be partitioned or not for parallel execution. अब हमें क्या करना है कि हम सीक्वेंशियल प्रोग्राम को पैरेलली एग्जीक्यूशन तो करवाना है, बट हम क्या चेक करते हैं प्रोग्राम पार्टीशन की हेल्प से कि हम उस प्रोग्राम को पार्टीशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं पैरेलल एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, सो प्रोग्राम पार्टीशनिंग जो हमारा टॉपिक है उससे हम क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि जो हमारा सीक्वेंशियल प्रोग्राम है उसको हम पार्टीशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं पैरेलल एग्जीक्यूशन के लिए, राइट। तो यहाँ पर अगर हम पार्टीशन कर सकते हैं, अगर हम सीक्वेंशियल प्रोग्राम को पार्टीशन कर सकते हैं पैरेलल एग्जीक्यूशन के लिए, तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारा प्रोग्राम का साइज है, ठीक है, तो हम प्रोग्राम को क्या करते हैं यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट साइज में पार्टीशन कर देते हैं पैरेलल एग्जीक्यूशन के लिए। एंड जो साइज होता है या हम पार्टीशन कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम साइज को या सेगमेंट, प्रोग्राम सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं, ग्रेन। जैसे सेगमेंट 1 है तो हम इसे क्या बोलेंगे, इन प्लेस ऑफ सेगमेंट वी आर कॉलिंग दिस ग्रेन 1, ग्रेन 2, ग्रेन 3। अगर हम 5 पार्टीशन करते हैं, 5 सेगमेंट्स होते हैं तो हम इसे क्या बोलेंगे, ग्रेन 5। ठीक है, तो दिस टर्म, ठीक है, दिस टर्म्स वी आर कॉल्ड ग्रेन, ग्रैनुलरिटी, ग्रैनुअल साइज और ग्रेन साइज। ठीक है, ये नेम है इसके, क्या क्या है, ग्रेन साइज, ग्रैनुअल साइज,
एंड ग्रैनुलैरिटी। ठीक है, तो ये टर्म्स हैं जो हमारे यूज होते हैं पार्टीशनिंग में। ठीक है, अब ग्रेन साइज जो होता है, अब हमने ये तो बता दिया कि हमारे यहाँ पर हमने सीक्वेंशियल प्रोग्राम को जो पैरेलल एग्जीक्यूट हो सकते हैं उनको हमने पार्टीशन कर दिया। ठीक है, एंड उनका सपोज कोई साइज, सपोज ये हमारा सेगमेंट 1 है, इसमें हमारे नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन कितने 100 नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो सकते हैं, तो हमने इसे क्या बोला ग्रेन 1। इसमें हमारे सपोज 400 ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो सकते हैं, मींस ग्रेन 2। इसमें हमारे सेगमेंट 3 में 500 ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो हमने बोला ग्रेन 3। एंड ये जो इसका साइज है कि नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कितने हमारे एग्जीक्यूट हो रहे हैं एक सेगमेंट के अंदर या एक ग्रेन के अंदर, दैट इज ग्रेन, दैट इज कॉल्ड ग्रेन साइज। ठीक है, तो ग्रेन साइज बेसिकली मेजर और काउंट द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ ग्रेन। ठीक है, क्लियर है कि एक ग्रेन के अंदर कितने नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन हमारे एग्जीक्यूट हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रेन साइज। ठीक है, और in programming term we can say that program segment। क्लियर है कि ग्रेन क्या होता है, ग्रेन साइज क्या होता है। ठीक है, अब जो ग्रेन साइज होता है आपका, ग्रेन साइज बेसिकली हमारे 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है हमारा फाइन, नेक्स्ट होता है हमारा मीडियम, एंड थर्ड होता है हमारा कोर्स। ठीक है, तो ग्रेन साइज हमारे 3 टाइप के होते हैं, मीडियम, fine and coarse, and grain size basically depending on the level of parallelism। ठीक है, किस पर डिपेंड करता है आपका ग्रेन साइज, जो हमारे लेवल ऑफ पैरालिज्म है उस पर डिपेंड करता है। लेवल ऑफ पैरालिज्म कितने टाइप के होते हैं हमारे, 5 टाइप्स के होते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, फाइन, मीडियम एंड कोर्स। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा जो ग्रेन साइज है वो फाइन है, मीडियम है या कोर्स है, तो वो हम आइडेंटिफाई करते हैं लेवल ऑफ पैरालिज्म से। ठीक है, कैसे हम बोल रहे हैं ग्रेन साइज क्या है हमारे, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर फाइन, मीडियम एंड कोर्स, तो मींस यहाँ पे जो हमारे इंस्ट्रक्शन होंगे उनकी कुछ रेंज होगी कि इतने सपोज इतने इंस्ट्रक्शंस इसमें होंगे तो दैट इज कॉल्ड फाइन, इस रेंज में होंगे तो हम इसे बोलेंगे मीडियम, इस रेंज में होंगे तो हम इसे बोलेंगे कोर्स। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन की एक रेंज होती है कि पर्टिकुलर ये इंस्ट्रक्शंस हैं जो इस लेवल से बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो हम ग्रेन साइज को कहां से आइडेंटिफाई करेंगे, लेवल ऑफ पैरालिज्म से। लेवल ऑफ पैरालिज्म क्या होते हैं हमारे, बेसिकली 5 टाइप्स के होते हैं। दिस इज अ लेवल ऑफ पैरालिज्म, लेवल 1 टू लेवल 5। आप देखिए इंस्ट्रक्शन और सेगमेंट्स लेवल 1 में है, सेकेंड लेवल में है नॉन रिकर्सिव लूप्स और अनफोल्ड इटरेशन, थर्ड है आपका प्रोसीजर, सब रूटीन, टास्क और कोरूटीन्स, लेवल 4 में है आपका सब प्रोग्राम, जॉब स्टेप्स और रिलेटेड पार्ट्स ऑफ अ प्रोग्राम, और लेवल 5 में है आपका जॉब्स ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, अब आप राइट हैंड साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आपके ग्रेन साइज दिए हुए हैं, लाइक आपका लेवल 1 एंड लेवल